Namaskar everyone. I welcome you all for the remembrance ceremony of my grandfather Chand Kumar Atal. Today we have gathered here to discuss anecdotes, teaching, impact that Chand Kumar Atal had in our lives. I'm pretty sure that everyone here who have met him has been positively impacted. And as a grandfather, I have always seen him as a source of light, guiding me towards correct path and making sure that I turn out to be a better human being. More or less, the things that I have learned from Chand Kumar Atal are that as a person, we should be selfless and always think about others, and not just about other human beings in general, but towards animals and as well as plants. He was very fond of nature, and he constantly used to connect himself in nature. And these small things used to bring immense happiness in his life. Second, okay, now I think I'm audible. Second, I think that we should all have a scientific temperament. Am I audible, everyone? Yeah. Second, I think that he taught me that we should all have a scientific temperament towards things. I remember back in 2005, 2003, there was an incident where people started believing that Ganesh idol can actually drink milk, and it was at that time my grandfather told me not to believe in these things, and he showed me how with capillary action one can actually make this thing work out. So since then I have really had this scientific attitude in my life. Third thing that Dr. Chand Kumar Atal has taught me is spirituality, and that we should always seek knowledge as means to find God and strive ourselves in that direction. uh, it, so there are a lot of things, but because of time constraint, I'm just mentioning few. And then I remember when uh, Arjuna asked Shri Krishna that what should one do when he lose someone beloved in his life, and Shri Krishna replies that those who are born are certain to die, and rebirth is certain for those who are dead, and one should not grieve for something which is inevitable. With keeping the teachings in our mind, I think that we have started Chand Kumar Atal Foundation as a right step to take forward his legacy, his actions, and his vision forward, and we'll make sure that his name lives on forever. So I would request Akshay to start with the next segment. Thank you, Aman. I request Mr. Bangru. Please come in, Mr. Bangru. कौन है? नमस्कार 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 नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? नहीं, वैसे आवाज आ रही है। नमस्कार नमस्कार। इस श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर अटल जी का योगदान मेरे सम्मुख आता है। डॉक्टर अटल जी जो हैं वो बहुआयामी व्यक्ति थे। वो उन्होंने कई क्षेत्रों में उनका योगदान था। मेरी जो उनसे जो भेंट हुई, चर्चा हुई, मैं तब संग्रहालय में एक छात्र था, तो उसके नाते मेरी उनसे भेंट हुई थी आज से 30 साल पहले। तो उसके बाद फिर हमारा मिलना जुलना लगातार रहा। तो मैं तो अटल परिवार का अपना एक अंग समझता हूँ मैं, और मैं इस दुख की घड़ी में मैं आप सबके साथ हूँ। और ये दुख जो है मैं आपको तो है ही है, तो मैं भी इस दुख में आपके साथ शामिल हूँ। और जो ये क्षति है, ये क्षति जो है, ये क्षति जो मैं समझता हूँ कि ये विज्ञान जगत को तो है, ये कला जगत को भी ये क्षति है। मेरे साथ उनके साथ कई संस्मरण जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि वो एक जो उनका एक सजीव जो व्यक्तित्व था, वो बहुत कम देखने को मिलता है।
और जिस तरह से मैं बहुत सारे लोगों से मैं संपर्क में रहता हूँ, कार्य करते हैं हम, तो जिस तरह से उनका बहुआयामी था कि वो कला के प्रति भी उनकी जो चेतना थी, वो सजग थे उसके प्रति भी, और पर भी उनका जो शोध था, उस पर भी उनका जो चिंतन था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं कई वर्षों से मैं जो है हम ज़्यादा उसमें चर्चा में नहीं भाग ले सके, जो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। तो अन्यथा मैं उनको हमेशा मिस किया मैंने, और हर बार मिस किया। और वो जो आज तो वो सारे जो पटल हैं, जो उनके साथ मेरे जो हमने समय बिताया है, वो सामने आ रहा है। और उनके सहयोग से अब बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए हैं। आपको मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि ये जो कार्य है, मतलब हम इस जीवन में आते हैं तो हम जीवन एक ऐसे निरर्थक न जाए। उन्होंने अपने जो पद छाप हैं, अपने पद चिन्ह हैं, उन्होंने जगह-जगह उन्होंने कार्य किया है। आपको मैं बता दूँ कि जो है उन्होंने एक जो है मिनिएचर पेंटिंग्स है, उस पर वो एक पुस्तक लिख रहे थे। उसका पूरा संकलन उन्होंने किया था। तो वो देहरादून में थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पानी बह गया, वो सारा कुछ वो सब कुछ इसमें चला गया, वो सब चला गया। फिर वो दोबारा उसमें लिखने में बैठे, और साथ-साथ में वो प्रोत्साहन देते थे कलाकारों को। क्योंकि मेरे जिस क्षेत्र में तो कलाकार और जो है कला इतिहास ही मेरे सम्मुख है। तो वो मेरे पास आते थे, और कोई भी कार्यक्रम हो तो खुद ड्राइव करके आते थे, और दूर-दूर से वो आते थे और हमारे साथ समय बिताते थे। हमने बहुत बड़े जो कार्यक्रम में उनका जो जो किया, उन्होंने सहभागिता की उसमें, वो था एक जो है कश्मीर उत्सव। कश्मीर के साथ उनका जो है हमेशा प्रेम रहा, और कश्मीर की संस्कृति के साथ, कश्मीर की कला के साथ। और उन्होंने जम्मू में भी उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया यहाँ पर, जो और हमेशा उनका ये था कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, और वो प्रेरणा देते रहें। और मैं जिन-जिन लोगों से मुझे बाद में अवसर मिला मिलने का, तो उन्होंने भी इनकी बहुत तारीफ़ करी। जो विज्ञान के क्षेत्र में इनकी जो उपलब्धियाँ हैं, तो वो भी जो है पूरे देश के लिए, पूरे जो है देश में उसका जो है गुणगान किया जाता है इनकी उपलब्धियों का। और कला जगत में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे अभी जो है मेरे जो है सखा ने जो है वह जो उल्लेख किया है कि हम अटल फाउंडेशन का हमने कार्यक्रम किया है, और मुझे आशा है कि ये अटल फाउंडेशन जो है इनके कार्य को और आगे बढ़ाएगा। जो उनका जो सपना था वो साकार होगा, वो जो कार्यों के द्वारा आगे। और इसमें हाँ, आप सब उसमें योगदान दे देंगे। उसमें विज्ञान भी होगा, उसमें कला भी होगा। और इतना कहते हुए कि जो है और भी जो हमारे यहाँ पर मित्र हैं, वो भी अपनी जो है बात रखना चाहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो पुण्य आत्मा को उनको जो है जो उनको एक जो है एक उच्च स्थान मिले, जहाँ भी वो जाएँ, जिस लोक में भी वो जाएँ, उनको उच्च स्थान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम है वो तो एक बहुत कार्यों को आगे बढ़ाना है, उनकी स्मृति को अमर हमेशा रखना है, जो है उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। Thank you, Bangruji, for the kind words. I request Dilip ji can please come in and start the prayers. थोड़ी शक्ल में लेके दिए वैसे कोई हेलो दिलीप जी हमारे आज जो है हमारे सम्मुख जो है भजन और उनकी स्मृति में भजन गाएंगे। दिलीप जी के बारे में बता दूं, दिलीप लिंगू जी एक विख्यात ये संगीतज्ञ है, और इन्होंने कई जो है फीचर फिल्म में भी इनका संगीत और गायन हुआ है, और उन्होंने जो है देश विदेश में इनकी ख्याति है। इन्होंने कश्मीर का जो पारंपरिक जो है गीत, ये जो संगीत है, और जो है और उसके साथ जो शास्त्रीय संगीत है, तो ये दोनों विधाओं में ये जो है पूर्ण है। और जो है ये जो संध्या है, जो हम डॉक्टर अटल जी की याद में हम मना रहे हैं इसको, उनकी स्मृति में, तो मुझे लगता है कि इसमें सबको एक शांति प्रदान होगी इनके 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 संगीत से और इनके भजनों से। नमस्कार। मेरा सभी को सादर नमस्कार। और
आज इस श्रद्धांजलि जो दे रहे हैं हम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है। तो इस पे मैं शुरुआत कैसे करूं? तो एक श्लोक से ही करूंगा। ये य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवद गीता अध्याय 2 में श्री कृष्ण बहुत समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अर्जुन को समझा के वो ये निश्चिंत होना चाहते हैं कि वे युद्ध के लिए प्रेरित हों, क्योंकि पराकाष्ठा हो चुकी थी। अर्जुन को लगता था कि शायद वो मारने वाला है, क्योंकि उनको कर्ता का भाव आ चुका था, मगर कृष्ण उसे समझा रहे थे। वो समझा रहे थे कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि कहूँ कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं, आग इसे जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। ये तो शाश्वत सत्ता है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। May He protect us both together. May He nourish us both together. May He work conjointly with great energy. May our study be vigorous and effective. May we not mutually dispute, or may we not hate any. Let there be peace in me. तो जब हम शांति की बात करते हैं तो दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे, दो तरह से एड्रेस हुआ है। जो ये महापुरुष लोग होते हैं, ये उस नाद ब्रह्म में जीते हैं
एक्टिवली उनका जो आत्मस्वरूप होता है वो एक्टिव होता है। पंचस्त्विकार कहते हैं, ऐन्द्रस्येव शिरासनस्य दधति मध्ये ललाटं प्रभां शौक्लीं कान्तिं मनुष्णगोरिव शिरस्या तन्वती सर्वतः। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, डिजायर, knowledge and action, righteous desire, righteous knowledge and righteous action. Such towering people like आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर C.K. अटल जी, आप इस नाद रूपी नौका में विचरण कर रहे थे और प्रकाश रूपी जो उसमें सामंजस्य था, प्रकाश और ध्वनि का, सेलिशियल साउंड जिसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं, नाद योग की मार्फत अगर देखें तो ऐसे लोग हमेशा अद्भुत कार्य करने को तत्पर होते हैं। वही आपके साथ भी था। आप ईश्वरी स्वरूप होते हैं। तो जैसे जगदम्बा के लिए कहा गया है, त्वं चंद्रिका शशिनि तिग्मुरुचौरुचिस्त्वं त्वं चेतनासि पुरुषे पवने बलं त्वं त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनि त्वं ऊष्मा। अर्थात हे जगदम्बा, अगर आपकी उपस्थिति इस विश्व में हमारे आसपास हर एक एस्पेक्ट में नहीं होगी तो ये संसार नीरस होगा। यही तो सच है ना। महान वैज्ञानिकों के लिए अगर महान वैज्ञानिक आविष्कारों से हमारे जीवन में रंग न भरें तो ये संसार नीरस होगा, कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का। तो मैं कुछ बातें यहाँ रखना चाहूँगा डॉक्टर साहब के बारे में। A polymath and multidisciplinary scientist and art historian and author, ex-director IIIM, J&K, CSIR, ex-faculty University of Nebraska, USA, Punjab University, consultant UNDP, UNIDO, WHO, FAO, PAHO. Professor Dr. Chand Kumar Atal was a multidisciplinary award-winning scientist, academician, art collector and polymath. He ranks highly among the top pharmacognoscists internationally. He was considered as a visionary and a living legend in his field and profession by his contemporaries. He has been a towering personality in his field who has inspired generations of scientists, and his achievements as well as his name is mentioned in the list of pioneers in scientific journals in India and abroad. His contributions have had pioneering global impact in various sciences, technologies, rural research, health, drug research, and medicinal plant research. He was equally passionate, traced with art, culture, and history, which had made him an art connoisseur, critic, patron, writer, and collector. As an art collector, he has also delivered lectures at numerous institutes, contributed articles, and also promoted cultural and art activities. गुरुग्राम स्थित अटल म्यूज़ियम इसका उदाहरण ही तो है। आपके नाम से भव्य सभागार
इस बात की और इशारा ही तो करते हैं। आपके जो म्यूज़ियम हैं उसमें ऑनररी एडवाइज़र्स में सुविख्यात वैज्ञानिक और न जाने अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि जो ख्याति और उपाधियां हैं वो वहन करते हुए डॉक्टर यूसुफ के हमीद, डॉक्टर राम मशेलकर, डॉक्टर आरूबी विजेश केरा, डॉक्टर के.सी. शर्मा, डॉक्टर पल्पू पुष्पगंदन, डॉक्टर सुधीर कुमार सोपोरी, डॉक्टर हरि कृष्ण सिंह, ऑनररी ब्रिज के तैमिनी, श्री परवेज दीवान, प्रोफेसर U.K. पंडित, डॉक्टर नवीन अटल और कई सारे लोग। एक बहुत बड़ी बात होती है तब जब ऐसे महान वैज्ञानिक बहुत कुछ देते हुए अपना जीवन सार्थक करते हैं और प्रेरणा स्रोत बनते हैं, प्रेरणा स्तंभ बनते हैं। तो ललेश्वरी क्या कहती हैं जब वो शिव अवस्था की बात करती हैं? शिव अवस्था की बात करते ही वो अपने अनुभव साझा करती हैं। श्यूत शक्त कचो डीठम तिमौरटम कायस जाय दायस दीर ससनै मीठुम तीलित रूजुम त्रविथलर। ऐसे जो महान विभूतियाँ होती हैं वो ईश्वरीय अवस्था में स्थित होते हैं, तभी तो कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी तो अनुपम योगदान के धनी बनते हैं। वो कुछ ऐसी अवस्था में होते हैं जिसके लिए हम कह ही सकते हैं ओमकार त्रिजगत परोम जान शेरोम पन्नुई जोचुन पान नाद व्यंथरोम बुशनेरस शेहजारस ठहरोम नाद ब्रह्म। ऐसी विभूतियाँ ओमकार जैसी सेलिशियल साउंड्स में विचरण करती होती हैं, उसमें गोते लगा रही होती है। उनके जो अंतर के नाद बिंदु होते हैं वे उष्णे रस अर्थात हमारे शरीर का जो दायां भाग है जिसमें सूर्य का वास हम मानते हैं और बायां भाग जो है जिसमें हम चंद्र का वास मानते हैं, दोनों के इफ़ेक्ट्स एक का गर्म और एक का ठंडा ऐसा माना जाता है। तो उसमें विचरण करते हुए तभी तो योगदान होता है, तभी तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहलाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी वहीं से आती है। और ये सब चलते ही मैं प्रिय अक्षय जी से मैं आग्रह करूँगा कि वे अपना वो वीडियो जो भी हैं उनको चलाएं। This is a short clip on the life and times of Dr. C.K. Atal. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि अजन्मा है, नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता।
वेदाशिनं नित्यं येनं मज्जं अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं बड़े सुंदर थे इनके पापा। यति हन्ति। अटल थे। हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को ये कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन कर रहे हैं ना श्रद्धांजलि। संकीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो भी यह उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि Recording in progress. न शोष्यति मारुतः। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं और न ही इसको आग जला सकती है, तथा इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु सुखा नहीं सकता। ओम शांति शांति शांति। Dr. Chand Kumar Atal, polymath and multidisciplinary scientist, art historian and author, ex-director, IIIM, JNK, CSIR, ex-faculty, University of Nebraska, USA, Punjab University, consultant, UNDP, UNIDO, WHO, FAO, PAHO. Professor Dr. Chand Kumar Atal was a multidisciplinary award-winning scientist, academician, art collector, and a polymath. He ranks highly among the top internationally. He was considered as a visionary and a living legend in his field of profession by his contemporaries. He has been a towering personality in his field who has inspired generations of scientists, and his achievements as well as his name mentioned in the list of pioneers in scientific journals in India and abroad. His contributions have had pioneering global impact in various sciences, technologies, rural research, health, drug research, and medicinal plants research. He was equally passionate triumphs with art, culture, and history, which has made him an art connoisseur, critic, patron, writer, and collector, and whatnot. As an art collector, he had also delivered lectures in numerous institutes, contributed articles, and also promoted cultural and art activities. Professor Dr. Chand Kumar Atal ji अन्यान्य विषयों में पारंगत थे, यह कौन नहीं जानता। जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी और ख्याति प्राप्त अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक, एक महापुरुष, एक ऐसे पुरुष जिनको दुनिया के महान वैज्ञानिकों में गिना जाता रहा, आज हमारे बीच नहीं है, मगर फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे तो हमारे ही बीच में हैं, क्योंकि ऐसा तो काम कर गए। ऐसा कहा गया और
उन्होंने एक विशेष विषय जो है बहुत उस समय, जबकि आप सोच भी नहीं सकते कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है, ये कौन सा विषय है। उस समय ऐसा अलग विषय चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो इस प्रकार के महापुरुष होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है और वे अलग ही कर बैठते हैं, कर गुजरते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप गए, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कोई भी रिसर्च हो, उसमें आपने धाक जमाई। यूं ही आपको विश्व भर में इतनी अप्रतिम ख्याति प्राप्त नहीं हुई। आप कर्मयोगी थे, आप ऐसे थे जैसा और कोई न था। आज हम आपको याद करते हैं, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि आपके चरणों में भेंट करते हैं। इस बात को याद करते हुए कि आपके योगदान से सहस्त्रों अन्य वैज्ञानिकों की उत्पत्ति हुई है और न जाने क्या क्या आपके योगदान से विश्व के जो वैज्ञानिक हैं आज आपको याद कर रहे हैं। तो याद करना नहीं है, आपने तो कुछ ऐसा बोया है जिस कारण आपको याद किया जा रहा है। हमारा आपको कोटि कोटि नमन। भावभीनी श्रद्धांजलि तो यही होगी कि सहस्त्रों नए वैज्ञानिक आपके पद चिन्हों पर चले। महेश्वर्याः पशुमातरः ऋषु चतुर्थं तैलवदासेच्यं मग्नः स्वचित्तेन प्रविशे मध्ये वरप्रसरः प्राणसमाचारे समदर्शनं मात्रासु स्वप्रत्ययसन्धाने नष्टस्य पुनरुत्थानं शिवतुल्यो जायते शरीरवृत्तिर्वृतं तथा जपः दानमात्मज्ञानं यो विपस्थो ज्ञाहेतुश्च स्वशक्तिप्रचयो वस्य विश्वं सिचिलयो तत्प्रवृत्तावप्यनिरासः संवेप्रभावा सुखासुखयोर्बहिर्मननं तद्विमुक्तस्तु ये अभूतपूर्व योगदान और अभूतपूर्व पर्सनैलिटी डॉक्टर साहब के बारे में जो कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। वॉल्यूम्स लिखे जा सकते हैं और जिसका कोई अंत नहीं है। इतना योगदान, ढेरों सारा अनुग्रह आशीर्वाद आपने मानव समाज को दिया है। ढेरों सारी बातें हैं जो आपके जो सहयोगी हैं, कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो वे जानते हैं। क्या कमाल की पर्सनैलिटी हुई हैं और जो प्रकाश आपने चारों दिशाओं में दिया है ज्ञान के मार्फत। आपके जो बहुआयामी, जैसे आपके जो कृतित्व में आर्ट, साइंस और कल्चर का समन्वय दिखता है, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और एक सच्चे इंसान की यही पहचान है जो हर एस्पेक्ट को साथ लेकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कहीं से भी कम ना हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पहले गाया है मैंने, तो पंचशिवी के
त्रिपुर स्वरूप का मैंने, क्योंकि वो फेमिनाइन एस्पेक्ट के नज़रिए से गाया गया, तो अब जो 2 पंक्तियां मैं और सुनाऊंगा वो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट से योग वाशिष्ठ की पंक्तियां हैं, सबको पता होंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा राइटियस डिज़ायर, गुरुर्विष्णु राइटियस नॉलेज, गुरुर्देवो महेश्वरा, तो यहाँ पर राइटियस एक्शन। इन्हीं तीनों के समन्वय से तो ऐसे महापुरुष जगत में आते हैं, कुछ करके जाते हैं, मगर बहुत कुछ करके जब गए तो एक निशान छोड़ गए। निशान छोड़ने का यही क्रम पंचस्तवीकार ने इच्छा, ज्ञान और क्रिया के माध्यम से कहा है, मगर उन्होंने उसमें और कुछ भी कहा है जो कि कश्मीर में, हम कश्मीरियों में काफ़ी प्रचलित है। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा वाग्वादिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरा परा परमयी माता कुमारी तियसी। ये नाद ब्रह्म है, कहते हैं ऐसे महापुरुष इन्हीं नाद ब्रह्मों की नौका में उस परम तीर्थ मोक्षधाम को प्राप्त होते हैं। तो हमारी यही श्रद्धांजलि है पावन पुण्य आत्मा के चरण कमलों में कि हम उन सभी ध्वनियों का स्मरण करते हुए आपके प्रति हमारे जो भावभीनी श्रद्धांजलि के सुमन हैं उनको अर्पित करें। उनको अपनी जगह हम एक ओमकार की भी ध्वनि कर सकते हैं। ओमकार त्रिजगत परोम जान, और ये भी कह सकते हैं नाद ओम ठहराउन्नभ्यस्थानस दान जालुन बुसरुन्ना द्वार खूलुम आसमान बिहिछुई अति जुतनई तार। आपने अनंत आकाश की ओर अपने द्वार खोल दिए। कर्मठ थे, कर्मयोगी थे, तो उसी दिशा में तो दैवी हैं, ईश्वर भी हैं, तो वे तार देने के लिए, भवसर को पार कराने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए वे स्वयं खड़े रहते हैं। मगर एक और एस्पेक्ट है जो बहुत ही सुंदर है। काकनिशूर नई अमृतुन बत था। काकिन in Kashmiri Parvesh is the sweetest granny. काकिन जिगरी, ये नाम बहुत आम है हमारे समाज में। तो काकनी is a deity who protects,
who is on duty at the heart center. अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, अनहद चक्र जिसे कहते हैं, तो कहते हैं काकनि शूर्णय अमृतुन बतथाल. जब ऐसी अवस्था होती है तो अमृतुन बतथाल मीन्स such people only gets अमृतम, नेक्टर, जो विरलों को ही प्राप्त होता है. अदमुचरी नहीं अलौकिक वतला. When one travels towards that Bhavasagara, one is greeted by all such deities, काकनी या विष्णु धाम भी इसे कहते हैं. स्वयं लक्ष्मी नारायण उपस्थित होते हैं, वो आपका स्वागत करते हैं. और इस महान वैज्ञानिक के लिए भी ऐसा ही सच है. नादरविथ ओम शुभरविथ चोम. आपकी ऐसी अवस्था होती है. इट्स इनबिल्ट, इट्स विद इन, इट्स नॉट एल्सवेयर, आउटसाइड एनीवेयर. शेख नूरुद्दीन नूरानी नुंद ऋषि कहते हैं, सुमेई निशेब तस निशे में तस निशे करारा नह कई सोंडुम्य परदिशे पन्ने दिशे में यारा. तो यही सच है. ऐसी महान हस्तियों के लिए, महान विभूतियों के लिए, आपके लिए ये सब संभव होता है. तभी तो मोक्षधाम की प्राप्ति होती है. तो आपके बारे में भी ऐसा ही हुआ होगा. तो अनहद कोई वैभव मर मुंद सोम. सोम अंग्रेजी में चांद. तो चांद ही वो है. तो वो जो नेक्टर जिसकी मैंने बात की, अमृतुन बतथाल जिसकी मैंने बात की, वो इसी सोम में है. तो उनका तो नामकरण ही ऐसा हुआ था कि जन्म से उन्हें चांद अर्थात सोम प्राप्त था. सोम ही ऐसा मैजिक है जीवन में जो महान हस्तियों को उस अवस्था में स्थापित करता है, जिसकी कामना संपूर्ण जगत करता है. जो कि जागृत होते हैं, वो ऐसे ही कृतित्व करते हुए जीवन को सार्थक बनाते हैं. सिर्फ अपने ही जीवन को नहीं, अपने साथ साथ समूचे समाज को प्रेरणा देते हैं और सार्थक होने की प्रक्रिया में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं. तो मैं प्रिय अक्षय जी से पुनः निवेदन करूंगा कि एक और जो मैसेजेस का कुछ हमारे पास है तो उसे प्ले करें. थैंक यू दिलीप. Professor Atal sir, an ideal teacher in his academy. He was an inspiration to many students. His teaching skills and lectures were full of innovative ideas and motivation. He was very circumspect about the needs of his students. For me, he was much more like an island, a complete refugee. Once after coming from Vietnam, when I told him about the visit to CDRI Lucknow, he immediately granted me permission and sanctioned my visit to CDRI Lucknow for 15 days to do very special experiments in microscopical studies. He used to guide the students for selection of the career opportunities also very specifically. Many of his students, walking on his footsteps, reached the zenith of their careers.
It's with a very heavy heart that I would like to record my condolences to the family of Professor C.K. Atal, who was the director of Regional Research Laboratory. Teacher, husband, and guide. It's shocking to realize that but it's heartening to remember his contribution that he made to science, Indian science, particularly in the area of pharmaceutical, phytopharmaceutical research and drug discovery. Much before he assumed the office of Director of Regional Research Laboratory, and remained so for about 4 decades. And it is during this time that in early 70s I came in contact with Dr. C.K. Atal when he was officiating Director of Regional Research Laboratory. And I think it was the first meeting with him. I remember that he took special interest in me and invested a lot of time and effort to guide me and to mentor me for future. Whatever I achieved thereafter, I give full credit to Dr. C.K. Atal. He was not directly my PhD guide, but he was in true sense the mentor and guide for all my contributions that I made later on in the Indian science. I think his vision of supporting such elements right from the early stage is the product of that. You can see that I rose from almost nowhere to be the director of the institute that he directed for many, many years. And I remained as a director of that institute later on for 8 years, more than 8 years. I'm Sudhir Sobol, a scientist, also former Vice Chancellor of German University. In passing away of Dr. Chandachandra, we have lost a great scientist and humanity. I met him first in Srinagar at his marriage ceremony, and later, on the advice of Dr. Jagat Moini, Jagat to us, at his office, the director at RRL Germany. After I had finished my master's in botany, to seek his advice for my future care. Dr. Atal was a pioneer in introducing modern pharmacognosy research in science. And it is to his credit, amongst many other efforts, he published more than 500 papers to create world's first bioenhancer factory. He won many awards and recognitions and many important contributions, including consultancy and many reports. It can be described as a visionary. He's left a wonderful legacy of scientific and research culture at now known as IIIM Jammu, an institute with which I have been associated. Currently also, I'm the chair of the scientific advisory. I pay homage to this great soul of India and a shining star amongst our We grow up in life with a few people, our parents, having significant influence on our lives. But I was lucky to have my Mamu, Dr. Chand Kumar Atal, who significantly shaped my life. As I learned many positive and practical patterns of thinking from him. His zest for life, his solution-centric mindset,
He's gently provoking you to move to greater heights, not just rest on current attainments and his love for art, his love for collecting art, and number of things which I learned from him. We miss him, but he lived a glorious life, full of success, inspiring life, kind of a beacon out there for us to emulate in terms of what he did for relationships, for people, for creating new things. He'll always live in my heart with the memories of short times. This is Ashok Josu, nephew of Dr. Chand Kumar. Thank you. My name is Ashok Kumar Atri. Very early in my assignment as Deputy Ambassador of India to Vietnam, I learned that Dr. Chand Kumar Atal was a veritable institution. He was highly respected by the government of Vietnam as the senior UN in Vietnam. I was highly impressed by his vast knowledge and expertise. Science, of course, was his passion, especially botany. And he had achieved not only personal excellence, but had also become a great mentor to many Abadi scientists in India and in Vietnam. He was an institution builder. He already had a very long track record of achievements behind him by 1995. In addition, he also had diverse interests. He was a great expert and a collector in numismatics, metallurgy, various arts, history of arts, and so on. मैं डॉक्टर केसी शर्मा उधमपुर से डॉक्टर सी के अटल साहब का हमारी पहली मुलाकात हुई somewhere in 74, 73, 74 और वो करवाई किसने है? ये हमारे थे दोस्त एक सूर्य सराफ जर्नलिस्ट थे और उनके थ्रू हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात क्यों हुई क्योंकि मैं मेडिसिनल प्लांट्स में इंटरेस्टेड था और पुंछ में मैंने एक म्यूजियम बनाया था। उस इंटरेस्ट की वजह से मैंने सोचा इस पर फर्दर रिसर्च कैसे की जाए, तो अटल साहब से मुलाकात हो गई एंड सी द इंटरेस्ट एंड कीन इंटरेस्ट ही हैज शोन। एक सबसे बड़ी बात जो अननोन आदमी है, जो आपकी जान पहचान करनी है, उसकी क्वालिटीज क्या है, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट कोई देखा तो उन्होंने एकदम से पिकअप हमें कर दिया। और उसके बाद ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है आदमी की कि he was a ground level worker from where he has actually started and risen to this level. ये बहुत बड़ी, it's a very big achievement of a person. और फिर मेडिसिनल प्लांट्स पर कई साल डेली लेफ्ट दिस प्लेस हम इकट्ठे काम करते हैं। एक तो ये बड़ा और मेडिसिनल प्लांट्स में क्या है हमने कि इकट्ठा काम किया और ये ड्रग्स हमने निकाल दी। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तालीनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंच
धन्यवाद अक्षय जी। अपने ऐसा समय आता है जब सब आपकी बात करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा होती है। यह समय उन सब बातों का जो प्रेरणा स्तंभ के रूप में आपने चारों ओर से अपना प्रकाश फैलाया हुआ है, उस सब को दर्शाता है। कितने लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, ऐसे ही लोगों को तो विरला कहते हैं। विरले जो आते हैं, महान कार्य करके चले जाते हैं। मगर अतुलनीय बात तो यह है कि हम कुछ अपने लिए ऐसी अनूठी यात्रा का ही ऑप्शन ढूंढते हैं और प्रे करते हैं। शरीरं शित्यं वः प्रभृतिरचितं केवलम् इदं सुखं दुःखं चायं। जो अशोका सुनाया था, क्या वो बंद हो गया? पता नहीं, चल तो रहा है, इसकी आवाज क्यों बंद हो गई? दिलीप जी। हाँ जी। म्यूट होगा। सुखम दुखम चायं कलयति पुमांश चेतन इति सुफुटं जनानोऽपि प्रभवति न देहि रहितुं शरीराहंकारं तव समय बाह्यो गिरिसुते। हे पार्वती, यह चैतन पुरुष इस केवल पृथ्वी जल आदि पंच महाभूत का बना हुआ शरीर को और सुख दुख को ही जानता है। तुम्हारे सिद्धांत को न जानने वाला भली प्रकार जानता हुआ भी शरीरधारी देह अभिमान को छोड़ने में समर्थ नहीं बनता है। मगर यह आपकी प्रेरणा है, आपकी उपस्थिति है जो जिनको प्रेरणा देता है तो वे पराकाष्ठा को अपने जीवन काल में पहुंच जाते हैं। पिता माता भ्राता सुहृद अनुचराः सद्गृहिणी वपुः पुत्रो मित्रं धनमपि यदा मा विजहति तदा मे बिन्दाना सपदि भयमोऽन्धतमसं महाजोत्सने मातार्भव करुणया सिनिद्धधिकारी। हे महाप्रकाशमयी, जगत को उत्पन्न करने वाली तथा पालन करने वाली माँ, पिता, माँ, भाई, अत्यंत प्रेमी, नौकर, घर, पत्नी, शरीर, पुत्र, मित्र और धन भी जिस समय मरण काल पर मुझे छोड़ देते हैं तो उस समय दया करके मेरे भय और मोह रूपी अंधकार को नाश करती हुई तुरंत ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाइए और मुझे अपने साथ एकता करा दीजिए। ऐसा ही तो होता है महापुरुषों के साथ। समूचा दिव्य लोक आलोकित होता है, जैसे कि वेलकम करने के लिए स्वयं शिवजी आए, जगत जननी जगदम्बा आए, विष्णु नारायण स्वयं आए और जितने भी देवी देवता हैं उनके आने से प्रसन्नचित हों। पर शोकाकुल परिवार के लिए हमारी यह भावभीनी श्रद्धांजलि, मोक्ष प्राप्ति जिन्हें हो तब शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। तो मुझे लगता है समय जैसे आगे बढ़ रहा है
तो उसी प्रकार से हम सब मिल करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, जिसके लिए ये कहा गया है, जो भू भुवः और स्वाहा का जो ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें ओमकार की ध्वनि निहित है, वो हमें प्रेरणा करे और इस कठिन घड़ी में सांत्वना और एक ज्ञानान्वित करने वाली बात हो जाए और सबके लिए सुखद रहे और सबको शांति प्रदान हो। मैं शुरू करता हूँ और आप सब भी जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो साथ साथ गाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अभी मैं प्रिय अमन जी और अक्षय जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप धन्यवाद के 2 शब्द कहें और इस सभा का समापन करें। Thank you, Dilip ji. I request Aman to say a vote of thanks. Namaskar everyone. Thank you for joining us and being the support for entire family. Dr. Chand Kumar Atal is no more with us, but I am sure that his legacy and his works will remain with us. His entire contribution is an inspiration for all of us. I once again thank you for your time, and your presence is the greatest tribute you can give to my grandfather Chand Kumar Atal. Yeah. Thank you. You are. Thank you. Thank you all. We're going to end the meeting now. Thank you, Dilip ji. Thank you, Aman. Thank you, Bangu ji. The Atal family wishes everyone a vote of thanks, and
we'll be closing the Zoom session now. Thanks.